Good morning, brothers and sisters. Indeed, this is the day that the Lord has made, as the children were saying. और जैसे बच्चों ने गाया कि सच में ये आज का दिन है जो प्रभु ने बनाया है And we will rejoice and be glad in it. और हम इसमें आनंदित होंगे, खुश होंगे। And we believe that God has a word for all of us, as we heard that the shepherd, God Himself, want to speak to us. और जैसे आज हमने सुना कि हाँ प्रभु के पास हमारे लिए वचन है, जो चरवाहा है वो हमसे बात करना चाहता है। There was a young carpenter who wanted to learn carpentry. और एक जो जवान बढ़ई था जो कारपेंट्री है उसको सीखना चाहता था। So he joins a workshop and learns to how to do a carpentry. इसलिए वो एक वर्कशॉप ज्वाइन करता है ताकि वो बढ़ई का काम सीख सके। So in that workshop, there was a large, huge piece of wood given to him. और वहाँ पर उसको एक लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा दिया जाता है। Along with that, there was a sandpaper also given to him to scrub that wood. और एक जो सैंड पेपर होता है जिससे उसके जो लकड़ी की घिसाई की जाती है वो उसको दिया जाता So है। what was the task? Entire day he has to scrub the wood, the large wood. और पूरे दिन उसको क्या करना था, उस जो लकड़ी है उसकी घिसाई करनी थी। And as he was doing that, the dust was coming out of it, और जैसे वो कर रहा था वो धूल उस पर आ रही थी and it was going in his nostril and lungs, and then his hand was also paining. और वो उसकी नाक में जा रहा था और उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा He था। was doing repeatedly. He was completely tired doing the same thing again and again. और बार बार वही काम कर कर वो थक गया था। He was thinking that this is really a meaningless work. This is nothing. This is a waste of time. This. और वो ऐसा सोच रहा था कि ये तो व्यर्थ का काम है, ये तो समय बर्बाद करना I है। thought that I will learn something new in this workshop. और मैंने तो सोचा था कि इस वर्कशॉप में मैं कुछ नया सीखूंगा। And he lost the interest one day. He thinks that I will resign this job. और उसका जो उसमें रुचि थी वो उसको खो देता है और वो सोचता है कि मैं इस जॉब से अब त्याग पत्र दे दूंगा। And I will join some exciting workshop where I can learn new and new things there. और मैं कोई ऐसी वर्कशॉप ज्वाइन करूंगा जहां पर मैं नई नई और एक्साइटिंग चीजें सीखूंगा। And there was a master carpenter very patiently looking at this young man. और जो वहाँ का जो मास्टर कारपेंटर था वो बहुत ही धीरज के साथ इस बढ़ई को And देख he रहा था। gently tells this young man there. और वो उसके साथ पास में आकर जेंटली उसको ऐसा बोलता है। And you can just see this dust coming out of it, and you're thinking that this is waste of time. और ये जो धूल आ रही है तुम उसको देख के ऐसे सोचते होगे कि ये तो मेरा समय बर्बाद हो रहा है यहाँ But पर। in that dust, when you're scrubbing that, I am seeing that the weakness is going out of this wood. और जब भी तुम इसकी घिसाई कर रहे हो तब मैं देख रहा हूँ कि ये जो लकड़ी है उसकी जो कमजोरी है वो दूर हो रही है। Every time you are scrubbing this wood, it is you are preserving that, you are protecting, you are making it polished. और जब जब तुम इस जो लकड़ी है उसकी घिसाई कर रहे हो, उसको मजबूत कर रहे हो, उसको पॉलिश कर रहे हो, उसको बचा रहे हो। And if you don't polish it, you build the house and it will crack and the storm will come, it will not stand there. अगर बिना घिसाई के तुम ऐसे इस लकड़ी से घर बनाओगे तो जब वो तूफान आएगा तो ये आराम से टूट जाएगा। But this scrubbing is necessary that, patiently, that wood has to be prepared. और ये जो घिसाई है वो इस लकड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये तैयार हो सके। Once it is ready, it can be used for master's use or any large, durable use. और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तब ये लंबे समय तक किसी चीज़ में बने रहने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता The है। strong foundation is necessary through that scrubbing. और इस घिसाई से वो जो एक मजबूत नींव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। And that master carpenter says, the scrubbing is not your enemy, it is your teacher. और ये जो घिसाई करना है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तो तुम्हें पाठ पढ़ाने वाला तुम्हारा टीचर है। This scrubbing is teaching your hand, be patient in that situation. और ये जो घिसाई करना है वो तुम्हें सिखा रहा है कि तुम इस परिस्थिति में धीरज रखो। You can see beyond what you are doing currently. It has something meaningful purpose in ahead future. और तुम्हें जो है इस परिस्थिति से बढ़कर आगे देखना है कि भविष्य में कुछ बेहतर है। I am doing something strong with this wood. और मैं इस जो लकड़ी है इसके साथ कुछ मजबूत करने जा रहा हूँ। And he says, stay there and continue till I am finished the work on this wood. और तुम्हें वहीं पर बने रहना है जब तक कि जो मेरा काम इस लकड़ी के साथ है पूरा ना हो जाए। Brothers and sisters, we are also like that young carpenter in our life also so many times. और हम भी जो है इस बढ़ई की तरह, इस यंग बढ़ई की तरह ही हम हमारे जीवन में होते हैं। Many of us may be going through this sanding, this scrubbing process or this seasons of our life today. और हमारे जीवन में भी हम जैसे एक की घिसाई का जो प्रोसेस होता है उससे हम होकर जा रहे It may हैं। be a difficult job or a difficult relationship at home with our loved ones. और हो सकता है ये हमारे जो काम की जगह पर वहाँ पर कठिन परिस्थिति या हमारे जो प्रियजन है उनके साथ एक कठिन रिश्ता हो सकता है। There might be a scrubbing through a prolonged illness or a financial crisis that we might be going through. और हो सकता है कि वो जो घिसाई है मानो एक जो लंबे समय तक बीमारी चल रही है उसके द्वारा और हमारे जो आर्थिक
आर्थिक परिस्थितियां खराब है उसके द्वारा हो सकता Any है। difficulties or any valleys or any situation or pain that we are passing through in our life. और जो हमारे जीवन में मुश्किलें हैं या फिर जो एक वादी से हम होकर जा रहे हैं, घाटी से, वो हो सकता है। Just remember that God is scrubbing the rough planks, that wood, He is rubbing that. और जानिए कि परमेश्वर जो है उस लकड़ी का जो रफ जो हिस्सा है, सतह है, उसको घिस रहा है। During this scrubbing, our natural tendency to give this response always. और ये जब हमारे जैसे एक जीवन में घिसाई सी होती है, तब हमारा जो प्राकृतिक जो रिस्पांस होता है वो ये होता है, Because we don't like this scrubbing, we always want to escape, we always want to run as early as possible. और जब ऐसा होता है तो हमारा जो प्राकृतिक प्रति उत्तर होता है वो हमेशा वहां से भाग निकलना, बच निकलना होता I है। want to find easier way out of this situation. I just want to come out anyway from these circumstances. और मुझे कैसे भी करके जो आसान रास्ता है वो ढूंढना है, कैसे भी करके इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। We want to withdraw because of the discomfort that we feel in that और circumstances. जो डिस्कम्फर्ट हमें वहां पर उस परिस्थिति में होता है उसके द्वारा हम वहां से निकल जाना चाहते हैं। Today the message that God has kept in my heart is today. और आज जो प्रभु ने मेरे हृदय में जो बात को रखा है, Sometimes God's command is not go, but to abide in that situation till His work is complete in our life. और कई बार प्रभु का जो उत्तर होता है वो ये नहीं होता है कि वहां से निकलो, पर कई बार होता है कि वहीं पर ठहरे रहो जब तक कि उसका काम हमें पूरा ना हो जाए। Because we feel inconvenience, discomfort in our circumstances, we just immediately want to escape from that और circumstances. क्योंकि हमें वहां पर अच्छा नहीं लगता है, हमें वो होता है, इसलिए हम तुरंत वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। But Father, that carpenter, master carpenter is doing some work on our life through scrubbing. He's preparing us for something. पर वो जो हमारा जो पिता है, हमारा जो मास्टर कारपेंटर है, वो जो उस घिसाई के द्वारा मानो एक काम को कर रहा है। We can stay there and allow God to work His complete work in our life. और हम वहां पर बने रह सकते हैं और फिर प्रभु का जो काम है वहां पर पूरा होने दे सकते He हैं। can accomplish, when we stay there in those situations, God can accomplish greater purpose in our life. और जब हम वहां पर बने रहते हैं तब कुछ बेहतर, प्रभु उत्तम कुछ कर पाता है। Yes, God wants to speak to us that my child, my brother and sister, stay there in that situation. और आज प्रभु हमसे कहता है कि मेरे बेटे बेटी, तुम उस परिस्थिति में बने रहो। He wants to do a deeper work, a beautiful work of refining us inside of us. और हमारे भीतर से हमें जो रिफाइन करने का काम है वो गहरा काम प्रभु हमारे भीतर करना चाहता है। Yes, we might have some special situation where there is a different circumstances where we might have to come out from that situation. We can consult our elders or matured brothers and sisters. और हो सकता है कि हमारी परिस्थितियां कुछ इस तरह से हो जहां हमें निकलना हो, वहां पर हम हमारे जो सयाने, हमारे जो एल्डर्स हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। But God wants us to, wherever we are, whatever we are circumstances we are going through, God's voice, stay there. I'm working in your life. और जहाँ कहीं हम हैं वहाँ पर हमें प्रभु की आवाज़ को सुनना है कि वो क्या कहता है, कि क्या हमें वहाँ पर बने रहना है। We can trust God's promises, His process in our life. Whatever He is doing with some purpose in our life. और हम हमारे प्रभु के जो वायदे हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारे जीवन में कुछ कर रहा है। We see Philippians 1:6. और हम फिलिपियों 1:6 देखते हैं, God has started a good work in our life. और प्रभु ने हमारे भीतर एक अच्छा कार्य आरंभ किया है। And He alone is faithful to complete this work inside of us. और वो विश्वास योग्य है उस कार्य को हमें पूरा करने के So लिए। God wants to do a work inside of us. और प्रभु हमारे भीतर एक काम को करना But चाहता है। are we cooperating with God to accomplish God's work in our life? पर क्या हम उसके साथ सहयोग कर रहे हैं उस काम को पूरा करने के लिए? James 1, chapter 1, और याकूब 1:1 में लिखा है, 2 to 4 verse. 2 से 4 में, It says, James 1:2, it says that, consider it joy because this very testing of your faith is producing perseverance and makes us mature and complete. और ये भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। God wants to make us mature and complete. This is the purpose the trial has in our life. और जो हमारे जीवन में परीक्षाएं होती हैं उनका उद्देश्य ये है कि प्रभु हमें जो है सयाना और संपूर्ण बनाना चाहता है। From our part, we just have to stay there in waiting expectantly, receiving God's grace. Lord, do what you want to do in my life, और Lord. हमारा जो कार्य है वो ये है कि हम धीरज से वहां पर बने रहे कि प्रभु आप अपने कार्य को मुझ में पूरा करें। Are we trying to escape the furnace without getting refined through it? और क्या वो जो भट्टी है हम उसमें अपना पूरी तरीके से शुद्ध हुए बिना वहां से बाहर निकलना चाहते हैं? God wants to purify our life, our character, everything, but we just want to escape. We want to run from it because of the discomfort. प्रभु जो है हमारा
जो चरित्र है उसको शुद्ध करना चाहता है, पर हम जो है बस वहां से निकलना चाहते हैं। If we run, we might miss the purpose, the will of God in our life. और अगर हम वहां से भागेंगे तो प्रभु की इच्छा को हम वहां पर खो सकते हैं। God wants to scrub all the rough edges from our life, और हमारे जीवन में जो ये रफ जो हिस्से होते हैं प्रभु उनको दूर करना चाहता है। especially from the inner attitude that we have, the fleshly attitude. He wants to scrub that. खासकर जो हमारे भीतरी मानवीय जो स्वभाव होता है प्रभु स्वयं का, उसको प्रभु दूर करना He चाहता wants है। to prepare us for the eternal purpose, for the body of Christ, that we can be useful. और प्रभु चाहता है कि वो जो अनंत उसका उद्देश्य है, प्रभु की जो देह के लिए उसका उद्देश्य है, उसको प्रभु पूरा करना चाहता है। There was a season in my life where the work was very, very difficult for me. और मेरे जीवन में ऐसा समय था जब जहाँ पर जो काम जो था, जो जगह थी, वो बहुत ही मुश्किल थी। I had a very harsh bosses और मेरे जो बहुत ही कठोर बॉसेस थे, and very tense environment to survive there. और वहाँ पर बने रहने के लिए बहुत ही तनावपूर्ण माहौल था। And my natural tendency was that I wanted more comfort and more control over the situation. और मेरा जो प्राकृतिक प्रत्युत्तर था वो ये था कि मुझे ज़्यादा आराम चाहिए और मुझे वहाँ पर शांति चाहिए। And when the pressure was increasing, I started designing my plan B, plan C, plan D. और जब वो प्रेशर बढ़ने लगा तब मैं प्लान करने लगा बी सी डी इस तरीके से, Because I wanted to escape as early as possible from that क्योंकि मैं situation. जितना जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलना चाहता था। And that's what our tendency so many times in our circumstances also. और यही हमारा जो स्वभाव होता है बहुत बार हमारी परिस्थितियों में। When things are getting harder and harder, we just want to escape, we just want to run away from that. और जब हालात मुश्किल और मुश्किल होते हैं तो वहां से हम भाग निकलना चाहते हैं। I didn't want to stay where God wanted me to stay to accomplish His work inside of me. और जहाँ प्रभु चाहता था कि मैं बना रहूं, मैं वहां पर बना नहीं रहना चाहता था। Instead of surrendering completely, I was just resisting very hard. और बजाय इसके कि मैं पूरा समर्पण करूं, मैं उसका पूरा तरीके से उसको रोक रहा था, बलवा कर रहा I था। was kind of retaliating in anger, in frustration. और फ्रस्ट्रेशन में और गुस्से में मैं बार बार उसके विरोध में बलवा कर रहा Though था। not verbally, but in my heart, there was a fight back spirit. और हाँ, शब्दों में तो नहीं, पर मेरे भीतर जैसे मानो एक लड़ने का स्वभाव था। So many times I missed the opportunity where God wanted to work in my life. और बहुत बार उन अवसरों को मैंने गवा दिया जहाँ पर प्रभु मेरे भीतर काम करना चाहता था। And looking back, I realized that और पीछे देखकर अब मुझे महसूस होता है इस बात का, so many times as if I'm fighting against God, God's hand. He wants to do some deeper work inside of us, but I'm not letting Him to do और that. कई बार ऐसा लगता है कि मानो मैं स्वयं प्रभु के खिलाफ लड़ रहा था, जहाँ प्रभु मेरे भीतर काम कर रहा था, उसके हाथ के विरोध में मैं काम कर रहा था। Yes, there are times we should definitely seek God's will to move or stay there. हाँ, ऐसा समय है जहाँ हमें प्रभु की इच्छा को देखना है कि हमें वहाँ बने रहना है या आगे बढ़ना है। But my point is, we should never run away before God's work is accomplished in our life. और मेरा कहना है कि जब तक प्रभु का काम ना पूरा हो जाए तब तक उससे पहले हमें वहां से नहीं जाना है। Might be a painful situation, a discomfort, a prolonged illness. Lord, do your work inside of me, Lord. और हो सकता है कि वो परिस्थिति अच्छी नहीं हो या फिर एक बहुत लंबे समय से बीमारी हो, उस सारी परिस्थितियों में प्रभु आप अपने काम को पूरा Or करें। else we'll come out prematurely from that circumstances without accomplished God's purpose. और नहीं तो ऐसा होगा कि प्रभु के कार्य को पूरे किए बिना हम अपरिपक्व रूप में वहां से निकलेंगे। We turn to 1 Samuel 13 chapter. और पहला शमूएल 13 में हम मुड़ेंगे, This is written about King Saul. और ये शाऊल राजा के विषय में लिखा है। 1 Samuel 13, और पहला शमूएल 13 read verse 8. और उसका 8वां अध्याय वचन हम पढ़ते हैं। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। Saul was not supposed to do this sacrifice. और जो शाऊल था उसको ये बलिदान नहीं चढ़ाना था, He was just supposed to wait there for the appointed time where Samuel had told him. और उसको वहां पर केवल उस समय जो शमूएल ने ठहराया था उस समय तक उसको वहां पर इंतजार करना He था। said that Samuel didn't come there. और इसमें लिखा है कि शमूएल अपने ठहराए हुए समय पर नहीं And आया। what says Saul realized that his troops were rapidly slipping away. और उसने देखा कि लोग जो है वो तो इधर उधर जा रहे हैं। And this is what we can see that he saw there is some loss happening because of this waiting in these circumstances. There is no point in waiting. और शाऊल को लगा कि देखो यहाँ पर तो ये इंतजार करने की वजह से मानो मेरा नुकसान हो रहा है, इसलिए अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। I'm losing my people. I'm losing my good reputation before people. There is no point in waiting here. और मैं तो मेरा जो सम्मान है उसको खो रहा हूँ, लोगों को खो रहा हूँ, इसलिए अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। Saul could have waited where God wanted him to wait. और जो शाऊल था वो इंतजार कर सकता था जैसे प्रभु ने ठहराया था। And because of that impatience, he lost
lost what God wanted to accomplish through his life. और उस असंयम के कारण उसने उस चीज को खो दिया जो प्रभु उसके जीवन में कार्य करना चाहता था। We see similar case in Genesis 16 chapter. और वही हम जो उत्पत्ति 16 में देखते हैं, This is the story of Hagar. वो हगार की कहानी है। 16:6 we can read. Genesis 16:6. उत्पत्ति 16:16 हम पढ़ेंगे। तब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया। 6 ओके 6। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। We see Sarah was a very tough boss here. और हम देखते हैं कि सारा जो थी वो एक बहुत ही कठिन बॉस थी। She treated very harshly and she was humiliating Hagar there. और वो जो थी जो उसकी दासी हाजिरा थी उसको वो दुख दे रही थी Hagar उसको। ran away from her master there. और फिर जो हाजिरा थी वो वहां से उसके स्वामी के यहाँ से भाग गई। So many times we also try to run away because of the discomfort where God wants us to stay there, be there. और कई बार हम भी उसी तरीके से उस परिस्थिति से भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ डिस्कम्फर्ट होता है जहाँ प्रभु हमें चाहता है कि हम रहें। Brother and sisters, God maybe want to speak to us in our trial that He wants us to stay there and to cooperate with God to accomplish His purpose. और कई बार प्रभु हमसे बात करते हैं कि उस परिस्थिति में हम बने रहें जहाँ पर प्रभु अपने काम को हमें कर सके। Exodus 14:14 we know this word. It says that be there, God will fight for us. और Stay there. निर्गमन 14:14 में हम जानते हैं प्रभु कहता है कि वहीं पर बने रहो, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा। We don't have to take all things in our hand, just stay there where God will take care of everything. और हमें सारी चीजों को अपने हाथ में नहीं लेना है, प्रभु करेगा और प्रभु उसको लड़ेगा। When Joseph in the Old Testament in the book of Genesis, he was in the prison. और हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं जो यूसुफ जो था जब वो बंदीगृह में था, There was a chance that the cup bearer was there and he thought that he will take me out from this place. और जो पिलाने हारे था उसने जो यूसुफ ने सोचा कि वो मुझे जो है इस बंदीगृह से निकालेगा He will recommend to Pharaoh and I will be out from this situation. और वो जाकर फैरो राजा को मेरे बारे में बताएगा और फिर मैं इस बंदीगृह से बाहर निकलूंगा। But God in his wisdom allowed Joseph to be forgotten for 2 more years. पर प्रभु ने अपनी बुद्धि में इस बात की अनुमति दी कि जो है वो 2 सालों के लिए वो बेरे जो है उसको भूल जाए उसके Maybe विषय में। Joseph might to come out from that. It was so many years he has suffered away from family, so much injustice, but God wanted him to be there for 2 more years. और जो यूसुफ था वो अपने परिवार से दूर था, उसको बहुत अनजस्टली उसको सताया गया, फिर भी प्रभु चाहता था कि 2 साल वो और उस बंदीगृह में बना रहे। Why? Because God was not still complete his work inside of Joseph. और क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु ने अब तक अपना कार्य यूसुफ में पूरा नहीं किया And था। those extra years were never wasted by God. और वो जो साल एक्स्ट्रा ईयर जो वहां पर उसने बिताए वो एक व्यर्थ नहीं थे। I believe Joseph might have learned a deeper patience in those 2 years. और मैं विश्वास करता हूँ कि यूसुफ ने और अधिक गहरे धीरज को वहां पर सीखा होगा उन 2 सालों में। And trusting God alone, not any man. और फिर उसने सीखा होगा कि केवल और केवल प्रभु पर विश्वास करना है, किसी मनुष्य पर नहीं। And when the appointed time came, God released him from that place and fulfilled his purpose in और his जब life. वो ठहराया हुआ समय आया तब प्रभु ने उसको उस बंदीगृह से निकाला और अपनी योजना को पूरा किया। Brothers and sisters, when God is placing us in a difficult environment, और प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु हमें एक मुश्किल घड़ी में हालात में लेकर आता है it is not to crush us but to complete his work inside of us. तो वो हमें कुचलने के लिए नहीं होता है पर उसके कार्य को हमें पूरा करने के लिए होता है। Read this in 2 Corinthians 4:17. और हम 2 कुरिन्थियों 17 में पढ़ते हैं। 2 Corinthians 4:17. 2 कुरिन्थियों 4:17 में It says that for a momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory, far beyond all comparison. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। God is producing something eternal for his glory inside of us. और प्रभु जो है कुछ अपनी महिमा के लिए, उस अनंत महिमा के लिए हमारे भीतर कुछ महत्वपूर्ण उत्पन्न कर रहा है। Rather asking, Lord, how can I escape from these circumstances? We can ask, बजाय इसके कि हम प्रभु से पूछें कि प्रभु मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं, Lord, what are you trying to accomplish through this trial in my life? हम प्रभु से पूछें कि प्रभु इन मुश्किल हालातों के द्वारा आप मेरे भीतर क्या पूरा करना चाहते If हैं। we stay there where God wants us to stay, God will give us greater grace to us. और जहाँ प्रभु चाहता है कि हम बने रहें, अगर हम बने रहते हैं वहां पर तो प्रभु हमें और अधिक अनुग्रह भी देगा। We can allow God to scrub away all our selfishness, all our impatience. और हम प्रभु को अनुमति दे कि वो हमारा जो हमारे
हमारे भीतर जो स्वार्थीपन है और असंयम है, प्रभु उसको स्क्रब करे, So more and more the life of Christ can grow inside of us. ताकि और अधिक प्रभु का जीवन हमारे भीतर And at बढ़े। the right time, God will also open the right door for us. और सही समय पर प्रभु सही दरवाजों को भी हमारे लिए खोलेगा। We know this very important, very wonderful promise in 1 Corinthians 10:13. और हम जानते हैं पहला कुरिन्थियों 10:13 में इस बात को, 1 Corinthians 10:13, it says, He will not allow us to be tested beyond what we can bear. और हम जानते हैं पहला कुरिन्थियों 10:13 में कि वो जो है हमारे सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा में नहीं डालेगा। And this has tremendously blessed me, and I've seen this proven in my own life. और इसने मुझे बहुत आशीषित किया है, और ये बात मेरे जीवन में भी प्रभु ने उस बात को सिद्ध किया है। When we think that I cannot go one step ahead, Lord, this is too much, Lord, I don't know how to go, Lord. और जब हमें लगता है कि प्रभु ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब एक कदम भी प्रभु मैं नहीं चल पाऊंगा, This is a guaranteed, this is a proven promise of God. We can trust in this promise that God will never allow to be tested beyond our और ability. ये प्रभु का गारंटी वचन है, और ये सिद्ध किया हुआ वचन है कि हमारे सामर्थ्य से बाहर प्रभु हमें परीक्षा में नहीं डालेगा। He will not applying this pressure to break us, but to refine us, to make a beautiful thing inside of us. प्रभु ये दबाव जो है हमारे भीतर इसलिए नहीं डालता कि वो हमें कुचल दे, पर इसलिए ताकि हमको वो और शुद्ध करे, रिफाइन करे। Yes, God makes all things beautiful in His time. प्रभु जो है अपने समय पर सारी बातों को बहुत ही सुंदर बनाता है, But till that time, He is making us beautiful inside of us. और तब तक प्रभु जो है हमें भीतर से सुंदर बना रहा है। So many times in our trials, we are just seeking immediate relief in our life. बहुत बार परीक्षाओं में हम जो है तुरंत बचाव, बाहर निकलना, उस बात को ढूंढते हैं, But God wants to bring some transformation, some changes inside of us. पर प्रभु जो है हमारे भीतर एक बदलाव को चाहता है। He wants to build our character, not just providing comfort. He provides, but He wants to build our character even. प्रभु सिर्फ ये नहीं चाहता कि हमको एक आरामदायक जीवन दे, पर वो चाहता है कि हमारे भीतर जो है एक स्वभाव, एक कैरेक्टर को वो बनाए, And this produces a priceless, a wonderful character inside of us, like Christ. और फिर वो जो हमारे भीतर मसीह के समान एक बहुमूल्य स्वभाव को लेकर आता है। We see in Romans 5:3 और हम रोमियो 5:3 में देखते हैं and 4, it और 4 starts में, with, we celebrate in our tribulation. कि हम जो हमारे कलेशों में भी घमंड करते हैं, आनंद मनाते हैं, He says, we celebrate in our tribulations कि हम हमारे कलेशों में आनंद मनाते हैं, because it's producing proven character inside of us. क्योंकि ये जो है मसीह का 3-4 क्योंकि इससे धीरज से खरा निकलना होता है। Because we can celebrate in that tribulation, in those trials that God is taking us through, brothers and और sisters. हम जो है इन जो कलेशों से हम निकलते हैं, हम उसमें आनंद कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं, Because there is a proven character that God wants to build inside of us. और ताकि हमारे अंदर एक जो स्वभाव है, प्रूवन कैरेक्टर है, वो हमारे अंदर बने, Our self will need scrubbing in our life. और हमारे जो स्वयं की इच्छा है उसको मानो एक घिसाई की जरूरत We है। always wanted to do what is my will. I just wanted to put it on my throne, but God wants to scrub that away and put His will inside of और us. हम जो चाहते हैं हमेशा हमारी इच्छा करना चाहते हैं, पर प्रभु जो चाहता है कि उन चीजों की स्क्रबिंग करने के द्वारा उस सिंहासन पे अपने आप को बिठाए। As we read in James, it says that He wants to do a complete and mature work inside of us, और brothers and जैसे sisters. हमने याकूब में पढ़ा कि प्रभु जो है एक सयाना और सिद्ध काम हम में करना चाहता That we है, may not lack anything inside of us. ताकि हमारे भीतर हम किसी बात की कमी ना रहे। So let's not interrupt, let's not be an obstacle for God's process, what He wants to accomplish in our तो life. आइए कि प्रभु जो काम करना चाहते हैं उसमें हम एक रुकावट ना बने, He wants to, come to a level where we can become mature to handle things. और प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसे स्तर पर आए जहाँ पर हम इन सारी बातों को हैंडल कर सके, Above else, He has promised us His presence inside of us. और इन सारी बातों से बढ़कर हमारे भीतर उसकी उपस्थिति का प्रभु ने हमसे वायदा किया है। We know that Jesus also learned obedience through suffering. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी उस सफरिंग के द्वारा उस आज्ञा मारने को सीखा। Will we stay there where God wants us to stay there, brother and sister? और क्या हम उस जगह पर बने रहेंगे जहाँ प्रभु चाहता है कि हम बने रहें? Maybe God wants to speak to us, some of us, brother and sister. और हो सकता है कि प्रभु हम में से कुछ लोगों से बात करना चाहता हो। And that master carpenter was speaking to that young man. और जैसे कि वो मास्टर कारपेंटर जो था वो उस यंग बढ़ई से बात कर रहा था, My child, still stay there. I'm working on your life. और वो कहता है कि मेरे बच्चे तू वहां पर बना रहे, मैं अब भी काम कर रहा हूँ। Maybe you might be in a difficult job or a difficult boss or environment. You might be facing that. और हो सकता है कि आप एक मुश्किल बॉस के अंडर हो और एक मुश्किल हालातों में हो आप, Maybe God wants to scrub
scrubbing all our pride from our life. और हो सकता है कि प्रभु जो है हमारे जीवन से वो जो घमंड है उसको मानव प्रभु घिस रहा He है। wants to teach us faithfulness in small things before God, not man. और प्रभु चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों में हम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रभु के सामने हम विश्वास योग्य He रहें। is building that dependency on God Himself with everything. और हर एक बात के लिए हम केवल प्रभु पर निर्भर रहिए, हमें प्रभु सिखा रहा And है। that scrubbing is essential to accomplish God's purpose in our और life. ये जो घिसा जाना है वो बहुत जरूरी है प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए। So many times the most painful struggle is not, in our Christian walk is not just outside, but sometimes from our family, in our home only. और कई बार ये जो मुश्किल हालात हमारे काम की जगह से बढ़कर खुद के हमारे परिवार के भीतर होते हैं। Maybe with our husband, with our wife, with our children. कई बार हमारे पति या पत्नी या हमारे बच्चों के साथ The conflict that we see, the way that we want them to grow in the Lord, we are not able to see any change in them. कई बार जो तकरार होती है या जिस तरीके से हम उनको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं हम नहीं देख पाते We हैं। want to see them as a disciple of Jesus, but somewhere we have tried our level best, but we don't see any change in their life. और हम चाहते हैं कि वो प्रभु के चेले बने पर हम उनके भीतर कोई बदलाव नहीं देख पाते Especially हैं। as a parent, we cry for our children also that, Lord, my child should follow you, Lord. और कई बार माता पिता के रूप में हम प्रभु को पुकारते हैं कि प्रभु मेरे बच्चे आपको फॉलो करे, पर हम होते हुए नहीं देखते हैं। We have a deep longing inside of us that, Lord, they should know Jesus as that Savior in their life. और हमारे भीतर ये पुकार होती है कि प्रभु वो आपको अपना उद्धारकर्ता करके जान सके। Yes, we all have this longing for our loved ones, हाँ, हमारे भीतर ये पुकार है हमारे प्रियजनों के लिए, but we cannot win them with our own strength. पर हम हमारे स्वयं की सामर्थ्य से हम उनको जीत नहीं सकते। Our own efforts, our arguments, our comments and nagging, nothing will work. और हमारे खुद के बोलने से हमारे उनके पीछे पड़ने से इन सारी बातों से कुछ भी नहीं And होगा। I have seen this in my life that I got frustrated so many times. I'm trying to convince, but it's not working. और कई बार मैं जाता हूँ इन बातों से, और पर मैं देखता हूँ कि कुछ भी नहीं होता I है, end up frustrated. Nothing is happening, Lord. और मैं देखता हूँ कि कुछ भी नहीं होता और मैं बस झुंझलाहट को ही देख पाता हूँ। My spouse, my children, the circumstances, my loved ones are same only. There is no change in their life. और हमारे जो पति पत्नी है या हमारे बच्चे या हमारे प्रियजन वो ऐसे ही हैं। And then I learned that the more I have the life of Jesus, that only will attract my loved ones to Christ. और मैंने इस बात को सीखा कि जितना अधिक मसीह का प्रेम मेरे भीतर होगा उतना ही वो उन लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करेगा। Not me, but the life of Christ inside of me has the power to draw my loved ones to Christ. और मैं नहीं, पर मसीह का जो प्रेम मेरे भीतर है वही जो मेरे प्रियजनों को प्रभु की ओर खींचेगा। Even though there are no changes in them, I will love them because the life of Christ is increasing inside of me. और भले ही उनमें मैं बदलाव नहीं देखता, बट मसीह के प्रेम के कारण जो मुझ में बढ़ रहा है उसके द्वारा मैं उनसे और अधिक प्रेम करूंगा। There might be hardened heart, they are not changing, but do we have the life of Christ increasing inside of us more and more? और हो सकता है उनके हृदय कठोर हो, पर क्या प्रभु का प्रेम जो है और अधिक, या प्रभु का जीवन और अधिक मुझ में बढ़ रहा है? Maybe till now we might have tried our own efforts, but we know that our own efforts are so limited and selfish. और हमने हमारे खुद के प्रयत्न किए, पर हम जानते हैं कि हमारे प्रयत्न जो है बहुत ही सीमित है। How can we get the life of Jesus inside of us then? और कैसे मसीह का जो जीवन है वो हमारे भीतर हम पा सकते हैं? 2 Corinthians 4:10. दूसरा कुरिन्थियों 4:10 में लिखा है। Listen to 2 Corinthians 4:10. दूसरा कुरिन्थियों 4:10, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। We always carry the death of Jesus inside of us. और हम हमेशा मसीह की जो मृत्यु है हमारे भीतर लिए फिरते हैं। In our will, in our own attitude, we carry the death of Jesus. और हमारी स्वयं की इच्छा में हमारे भीतर उस मसीह की मृत्यु को लेकर हम घूमते हैं। And this is the mystery of Christian life, brother and sister, to have the life of Jesus inside of us. और मसीह के जीवन को पाने का रहस्य जो है वो यही है। The death to ourselves will only manifest the life of Christ to others. और हमारे स्वयं के लिए मरना जो है वही मसीह को दूसरों को हमारे सामने हमारे भीतर दिखाएगा। And in those scrubbing seasons, God is giving us those circumstances to die to ourselves. और ये जो घिसे जाने वाले जो हालात है उस समय में प्रभु हमें मौका दे रहा है उन सारी बातों When की। there is no change, we try to get angry with our loved ones. जब हम कोई बदलाव नहीं देखते हैं तब हम हमारे प्रियजनों के साथ गुस्सा होते हैं। But we can die to ourselves, humble ourselves. Lord,
I submit myself, Lord. पर वहां पर हम मर सकते हैं और अपने आप को नम्र कर सकते हैं Reminding myself, I carry the death of Jesus in my body. और हम अपने आप को याद दिलाएं कि हम मसीह की जो मृत्यु है उसको लेकर चल रहे हैं। The other extreme, when we don't see any changes in our loved ones, और एक दूसरा एक्सट्रीम हो सकता है कि जब हम हमारे प्रियजनों में कोई बदलाव नहीं this देखते person will never change, I'll give up on them. कि ये दो व्यक्ति है कभी नहीं बदलेगा और मैं उसमें सारी आशा को छोड़ देता हूं। I tried everything, but there is no hope for this person in my family, in my loved ones. He will not able to change now. और मैंने तो सब कुछ प्रयत्न किया और वो नहीं बदला है, अब उसके लिए कोई आशा नहीं, मैं उसे छोड़ देता हूँ। Brothers and sisters, we have to die to ourselves to this doubt and unbelief also. और हमारे अंदर जो ये डाउट है और जो अविश्वास है उसके लिए भी हमें मरना है। Reminding, we have to carry the death of Christ, dying to self inside of us. और हमेशा हमें इस बात को याद दिलाना है, मसीह की जो देह की जो मृत्यु है उसको हमें लेकर चलना Just है। think of a lamp with oil. और सोच के चलिए जो एक लैम्प होता है जिसमें तेल होता है, The wick must, that has to burn away little by little so that the flame can shine brighter and brighter. और वो जो उस लैम्प की जो बत्ती होती है उसको जलते धीरे धीरे करके जलते रहना पड़ता है ताकि जो ज्योति है वो और अधिक In the same शाइन way, करे। when the trials are coming inside in our life, और वैसे ही जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं the self-centeredness, all the fleshly attitude has to burn away so that the life of Christ can be visible to others. और जितना वो सेल्फ सेंटर्डनेस या जो स्वयंपन है उसको जलना होता है ताकि मसीह का स्वभाव हमें दिख सके। And not our life, but the life of Christ inside of us will draw our loved ones to Christ. फिर हमारा स्वयं का जीवन नहीं बट मसीह का जीवन जो है वो हमारे प्रियजनों को प्रभु की ओर खींचेगा। Again and again Paul says in New Testament that I've been crucified with Christ. और बार बार पौलुस इस बात को कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। Romans 6:11 says, count yourself dead to sin but alive to God in Christ Jesus. और रोमियो 6:11 कहता है कि अपने आप को पाप के लिए तो मरा समझो पर प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। Yes, we are longing our loved ones, our children, our loved ones to be disciples of Jesus Christ. हाँ, हमारे भीतर ये पुकार है कि हमारे प्रिय जन जो हमारे बच्चे जो हैं जो मसीह के वो चेले बने। But the path is not through frustration, nagging them, or through our wisdom, our own self life. It will not work. पर वो जो रास्ता है वो उनके पीछे पड़ने से या गुस्सा होने से, फ्रस्ट्रेशन से, उससे नहीं The आएगा। path is only through the more and more life of Jesus inside of us. और वो रास्ता जो है बार बार जो है वो मसीह का जीवन हमारे भीतर आने से ही होगा। Let's stop asking why they are not changing, Lord. और आइए हम ये पूछना बंद करें कि प्रभु वो क्यों नहीं बदल रहे। Let's ask how much Jesus is seen in my life, how much Jesus is heard from my life. और आइए हम ये पूछे कि कितना अधिक मसीह जो है मेरे जीवन से दिख रहा है या सुनाई दे रहा है। Is it the life of Jesus flowing when my spouse, my children are looking at me? और क्या जब मेरे पति पत्नी बच्चे जब देख रहे हैं तो क्या मसीह का जीवन मुझ में से बहता हुआ दिख रहा है। Every time we will die to ourselves, the little more the life of Jesus will come out and they और will see Jesus. हर बार जब हम हमारे स्वयं के लिए मरते हैं तो और अधिक थोड़ा और थोड़ा प्रभु का जीवन हमें दिखता है And they will drawn to Jesus. और फिर वो प्रभु की तरफ खींचे जाएंगे। Only the life of Jesus has the power to change anyone's life. और केवल मसीह यीशु का जो जीवन है उसी के पास वो सामर्थ्य है उन्हें अपनी ओर खींचने का। If we are tempted to give up on our loved ones, brothers and sisters, और अगर हमारी ये परीक्षा होती है कि हमारे प्रियजनों पर हम आशा खो दें इस बात की, let's stay there. आइए कि हम वहाँ पे ठहरे रहें Let God allow Him to work in our life. और आइए हम प्रभु को वहाँ पर काम करने दें। Let God accomplish His work by putting more and more the life of Jesus inside of us. और आइए हमारे भीतर और अधिक प्रभु को आने के द्वारा प्रभु अपने काम को पूरा करे। We see Philippians 1 say He will accomplish His work which He started. और जैसे हमने फिलिप्पियों में पढ़ा कि प्रभु ने जो काम आरंभ किया प्रभु उसको पूरा करेगा। We should not ask Lord when this will end. हमें ये नहीं पूछना है प्रभु इसका अंत कब होगा, What is God perfecting inside of me, Lord, when I'm passing through all this? कि प्रभु जो आप पूरा करना चाहते हैं जब मैं इन सारी बातों से होकर जा रहा हूँ। I want to share one example. और मैं एक उदाहरण आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। Imagine a piece of iron or a metal that you have. और आप एक जो मेटल या आयरन जो है उसका एक टुकड़ा जैसे आपके पास हो, The piece of iron that you keep it outside in the open environment. और वो जो आयरन है अगर आप उसको बाहर इस तरीके से ही रख दे The rain will come, the environment, and it will get rustic. और तो अगर बारिश आए या बाहर का जब अगर उसको ऐसे रखेंगे तो उसमें जंग लग It जाएगी will become weak, and we will not be able to use later after और some months or बाद में years. वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। And you will not able to do any lasting work, or durable work with that kind और of फिर iron. उस जो आयरन है उससे कोई भी लंबे समय तक रहने वाली कोई भी चीज वो के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो And I सकता। read about this process called galvanization. और ये जो प्रक्रिया है गैल्वेनाइजेशन उसके बारे में मैंने पढ़ा। This is
galvanization is a very intense treatment. और ये जो बहुत ही गहरी प्रक्रिया होती है, So first of all, galvanization, all the iron has to be purified, all the dirt and every impurities they remove from it. और उसमें से जो अशुद्धि होती है और जो गंदगी होती है उस सब से उसको शुद्ध करना होता है। And then the important thing that it is immersed into a zinc coating, which is a temperature, extremely high temperature, around 450 Celsius. और उसके बाद जो जिंक की जो कोटिंग होती है जिसका जो तापमान होता है 459 सेल्सियस होता है, जो कि यस This is 10 times hotter than what we are looking at our summer here. और गर्मी के समय में जो तापमान होता है उससे 10 गुना उसका तापमान होता That है। iron is completely submerged into that zinc coating. और जिंक कोटिंग में उस आयरन को पूरी तरीके से डुबो दिया जाता है After that, it is taken out, और उसके बाद उसे निकाला जाता है। and immediately after that, the chilled water with the lowest water, the temperature, there it is put in that. और उसके बाद सबसे जो ठंडा एकदम चिल्ड वाटर जो है उसके अंदर उसको डुबाया जाता है। And through this process, that zinc coating is like inseparable with that iron. It is like attached to that iron और now. ये जो सारी प्रक्रिया होती है उसके द्वारा क्या होता है कि जो मेटल और जो जिंक है वो दोनों एक साथ एक हो जाते हैं। Now they are merged, and the iron has now a galvanization coating, it is said. और जो आयरन होता है उसमें गैल्वेनाइजेशन की कोटिंग अब हो गई है। And now this is used for a durable purpose or for shipping industries, और फिर जो है लंबे समय तक रहने वाली चीजें जैसे शिपिंग के लिए उसका इस्तेमाल even the होता है, construction sites. कंस्ट्रक्शन साइट में उसका इस्तेमाल होता है। The process was extremely fiery there. और जो उसकी प्रक्रिया थी वो बहुत ही फायरी थी, But the outcome was very durable there. We can see it has now usefulness now. पर जो उसका जो परिणाम है वो लंबे समय तक रहने वाला है। And this is the iron that we have, our natural self, our selfishness, our fleshly desires inside of us. और ये जो आयरन है वो जो हमारा प्रति उत्तर जो होता है या जो हमारी खुद की इच्छा होती है वो होता है। And it is always our inner man is prone to sin there, like that rusting. और हमारा जो भीतरी मनुष्य होता है वो उस जंग लगने के समान हमेशा पाप ही करना चाहता And है। we always carry that in disobedience, that fear, that nature to prone to sin. और हमारे अंदर आज्ञा ना मानना, पाप करना, उस तरह का स्वभाव हमारे भीतर होता है। Always try to depending on ourselves. हमेशा अपने ऊपर निर्भर रहना। And then God brings that difficult trials in our life, difficult jobs, circumstances in our life, in our family. और उसके बाद जो है प्रभु जो है कठिन परिस्थितियां हमारे काम की जगह पर, हमारे परिवार की जगह पर उस तरीके से परिस्थितियां लेकर आता He है। increases the temperature more and more and more. और उसके बाद वो जो तापमान है उसको और अधिक बढ़ाता है। So zinc coating is, taking part around that that iron. और फिर जैसे कि वो जिंक की कोटिंग उस आयरन के पास होती है उस तरीके से प्रक्रिया And चालू हो as जाती we है। pass through that furnace or trial in our life, the character of Jesus is formed inside of us. और जैसे उस आग की भट्टी से होकर हम जाते हैं वैसे वैसे प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे भीतर आता है। More and more character of Jesus. It is written all the fruit of the Holy Spirit. We try to experience in our life. और फिर धीरे धीरे करके पवित्र आत्मा के जो फल हैं उनको हमारे भीतर हम देख पाते हैं। This is not my work. This is God's work. When we stay there, God works inside of us. और जब हम वहां पर बने रहते हैं तब हमारा नहीं प्रभु का काम हमारे भीतर होता है। When we try to jump from that circumstances because of the discomfort, पर कई बार जब उस डिस्कम्फर्ट के कारण हम जब वहां से भागना चाहते हैं, maybe we might miss that opportunity what God wants to prepare us for in the future. और फिर वो जो है प्रभु जो भविष्य के लिए हमें तैयार करना चाहता था उस मौके से हम चूक जाते हैं। God wants to prepare us for the body of Christ. He wants to make us the pillar that we can build each other in the body of और Christ. प्रभु जो है हमें जो है मसीह की देह में एक पिलर के जैसे बनाना चाहती है और हम उसको मिस कर सकते हैं। When we stay there, allow God to do every work that He wants to accomplish. पर जब हम अनुमति देते हैं कि हम वहां पर बने रहते हैं ताकि वो अपने सारे काम को हमारे भीतर पूरा कर सके, He is not destroying us. He is preparing us for something better. हमें प्रभु नाश नहीं कर रहा है पर कुछ बेहतर के लिए वो हमें तैयार कर रहा He है। wants to make us wholehearted disciple of Jesus through everything He has allowed in our life. और इन सारी बातों के द्वारा प्रभु हमें पूर्ण हृदय से समर्पित एक चेला बनाना चाहता है। Brothers and sisters, He wants to do a work of scrubbing in our life. और प्रभु जो है मानो उस घिसे जाने के का प्रोसेस हमारे जीवन में Through करना चाहता every है। challenges, every circumstances that we are encountering in our और life. हर एक जो चुनौतियां बातें जो हम सामना कर रहे हैं, Like that young carpenter, we can only see the dust, the pain,
और उस यंग कारपेंटर की तरह हम केवल जो उस दर्द को या उस धूल मिट्टी को ही देख पाते We हैं wanted to escape from this. और हम उससे बच निकलना चाहते And हैं we wanted to make our own plans. और हम हमारे खुद के प्लान बनाना But चाहते God हैं। wants to stay there. I'm still working on your life. पर प्रभु कहता है कि तुम वहां पर ठहरे रहो, मैं फिर भी अभी भी तुम्हारे जीवन में काम कर रहा So हूँ। the question is not when will this end, और सवाल ये नहीं है कि इसका अंत कब होगा, but God is perfecting what work inside of me. That is important, brother and और sister. जरूरी ये है कि प्रभु उस काम को हमारे भीतर में सिद्ध करे, पूरा करे। He has begun a new of faith, a good work inside of us, and is faithful to complete that. और प्रभु ने हमारे भीतर एक नया काम किया और उसे पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य There है। is no shortcut to accomplish what God has to do inside of us. और हमारे भीतर जो प्रभु को काम करना है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। That we can become mature and complete in Christ. प्रभु में हमें जो है सयाना बनना है, संपूर्ण बनना है। Dear church, will we allow God to accomplish His purpose inside और of प्रिय us? कलीसिया, क्या हम प्रभु को अनुमति देंगे कि वो अपना कार्य हमारे भीतर पूरा कर सके? Will we stay where God has planted us to be? और क्या हम वहाँ पर बने रहेंगे जहाँ प्रभु ने हमें बने रहने के लिए Even ठहराया? there is uncomfortable circumstances, we don't like it, और भले ही वो हम उनको पसंद नहीं करते हैं, वो कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, but God is shaping us for eternal glory and purpose. पर प्रभु जो है हमें उस अनंत महिमा और उस पर्पस के लिए तैयार कर Yes, रहा है। when you stay there, you are never alone. God will give you greater grace to endure that. और जब वहाँ पर आप ठहरे रहते हैं, आप अकेले नहीं, प्रभु और अधिक आपको अनुग्रह देगा उन बातों को सहने के And लिए। as we heard that, as we die to ourselves every day again and again, और जैसे हमने सुना कि हम बार बार जब हमारे स्वयं के लिए मरते हैं, the life of Jesus will reflect it. और प्रभु का जो जीवन है वो हमारे भीतर से प्रकट The होता है। life of Jesus will shine through us, and our loved ones will able to see Jesus और inside मसीह of us. का जो जीवन है हमारे भीतर से वो चमकेगा और हमारे प्रियजन उसको देख पाएंगे। Maybe we might not have the life of Jesus the way we should have till now. और हो सकता है कि आज हमारे भीतर वो प्रभु का जीवन नहीं हो जैसा होना चाहिए And था, we are getting frustrated on our loved ones, but today let's ask the power of Holy Spirit that Lord, I need the life of Jesus inside of me. और उसके कारण हम हमारे प्रियजनों पर जुझलाते हैं, बट आज हम प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे वो मसीह का स्वभाव चाहिए। I want to cooperate with you by dying to myself. I want to carry the death of Jesus inside of me. और प्रभु मैं आपके साथ सहयोग करना चाहती हूँ, मैं स्वयं के लिए मरना चाहती हूँ, आपकी मृत्यु को मैं लेकर चलना चाहता हूँ। Maybe leave this hall, with this conviction that Lord, I don't want to run away from this trial, Lord, without accomplishing your purpose, Lord. और आइए हमारे भीतर हम इस बात का निश्चय करें कि प्रभु आपके उद्देश्य को पूरा किए बिना मैं किसी बात से नहीं भागूंगा। I will stay there where you want me to be, Lord. प्रभु जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर मैं बना रहूंगा। I will let you finish what you have started, Lord, inside of me. और प्रभु जो आपने कार्य आरंभ किया, मैं उसे पूरा करने के लिए भी आपके साथ He कोऑपरेट will करूंगा। strengthen us. He will give us grace. और प्रभु हमें हिम्मत देगा, प्रभु हमें अनुग्रह भी देगा। Let allow God to accomplish His work inside of और us. हम प्रभु को अनुमति दे कि वो हमारे भीतर अपने काम को पूरा May करे। Lord help us, brother and sister. प्रभु हमारी मदद करे। Amen. आमीन।